I welcome all of you on platform of YourPedia Education. You know, YourPedia Education is a platform which keeps on giving you information from different, perspectives. Different kind of things are being shared on this channel with you. And today I'm going to share with you another interesting thing, which is industrial training. Everybody in engineering is supposed to have some kind of industrial exposure. This is called industrial training. You know, students do not do industrial training very seriously. पहली बात तो there is a not a much culture of paid industrial training in India. Industrial training is not paid. हम लोग formality के लिए industrial training करते हैं. Normally we don't do it seriously. It has got its own implication. If you see the top B schools, IIMs and all, or for that matter abroad, the industrial training is paid, and that is the gateway to get a job. During industrial training, industry will see you, you will see industry, and industry is going to poach you, industry is going to hire you. But that culture is not there in India. Why? Because we have a mindset not to do training seriously. If you do industrial training seriously, then the same industry in which you do training seriously, that industry is going to offer you job. You will become chooser. As of now, you say, sir, job kahan milegi? Where I'm going to get the employment? If you do seriously your training, whether it is paid or unpaid, you get the job. Not only get the job, I mean, industry is ready to offer anything to you. Today, I'm going to share industrial training of one of my student, Salesh, and he did his industrial training in one of the industries. Earlier, he was offered paid training, but he got late, and then he accepted even non-paid training. He will mention, he will discuss with you. Then he did his job very well. It was a 6 months training. You know, in some states of India, the engineering mein one semester is full for industrial training, so that you get exposure to the industries and industries see you working and something like that. So he did his job very well for 6 months in that industry. On the basis of his effort and the job which he did in the industry, he was offered the job in that industry only. The uh, top executive of that industry basically offered him all the options, that whatever you want to do, you do it. But that fellow, Salesh, said, sir, that when I did my job when I did my training very seriously, I understood that there's so much scope. I mean, I can make this machine, and this machine has a huge demand, and चाइना से मशीन हम मंगवाते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी उसका डोमेन खुल गया. हम बोलते हैं ना कि स्टार्टअप्स क्या करें सर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करें, हमें आइडिया नहीं लगता. अरे आइडिया लगेगा अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, काम सीरियसली करोगे, तब आपको आइडिया लगेगा. एंटरप्रेन्योरशिप का या स्टार्टअप का आइडिया उसी को लगेगा जो अपना काम सीरियसली करेगा, दूसरे को नहीं लगेगा, दूसरे को आइडिया सीरियसली नहीं रहेगा. तो अगर आप अपना काम सीरियसली कर रहे हैं तो आपको जॉब्स भी मिलेंगी. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू जॉब तो मिलेगी मिलेगी, इसमें देयर इज नो ट्रबल इन दैट. बट यू विल हैव योर आइडिया ऑफ क्रिएटिंग योर ओन वेंचर ऑल्सो. स्टार्टअप्स, अपने वेंचर, अपने स्टार्टअप्स को भी आप आगे लेके जाएं, आपके दिमाग में वो आइडिया भी आएगा. तो having your own entrepreneurship, having your own startups, that is also one domain through opens. So my request to you is listen to the training which Salesh did seriously. देखो किस पैशन के साथ वो बता रहा है, क्या क्या उसने किया, और उसने सारा एफर्ट खुद किया है. उसके बाद उसको इसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पैकेज के ऊपर ऑफर भी हुआ जॉब, कि अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो प्लीज आप हमारे पास ज्वाइन करो. इंडस्ट्री के लिए वो एक एसेट बन गया था 6 महीने के अंदर. और उसके बाद उसने बोला नहीं, मैं इसमें नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप या अपना स्टार्टअप्स कर सकता हूं. सो ही इज प्लानिंग फॉर दैट. सो यू अंडरस्टैंड, यू नो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सिग्निफिकेंस ये है. अब बहुत से बच्चे जब आगे जाते हैं, इंटरव्यूज में जाते हैं, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर्मेलिटी के लिए क्या होता है, इंडस्ट्री विजिट तक नहीं की होती. सो यू नीड टू डू दैट सीरियसली. सो दिस माई वीडियो इज सीरीज ऑफ वीडियो में इसमें स्टार्ट करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सीरियसली कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, उसके थ्रू जॉब कैसे उठाते हैं. अभी तक वो कल्चर आपका आईएम्स और नेटी में है, क्या वो कल्चर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आ सकता है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. होप यू एंजॉय दिस, होप यू अंडरस्टैंड दिस. जो भी क्वेरीज है शैलेश से आप डिस्कस कर सकते हैं. इज अ वेरी वेरी थॉरो जेंटलमैन एंड ही हेल्प्स एवरीवन whom he can help. तो अगर आपको डिस्कशन करना है, you can do with him. Thank you. You want to give presentation? First you give presentation. We all listen to that. Half an hour का टाइम रहेगा आपके पास, तो presentation के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे. Can you share your screen and we can all see that? So
Hello, all of you. My name is Shailesh, and I'm a student from UIT Punjab University. And I did my industrial training of 6 months in Chima Boiler Limited. And my college mentors are Epi sir and Manu sir, who are the HOD of my department. And industrial mentors are Mr. Sandeep Apneja sir and Maninder sir. Now, without wasting time, we proceed. Uh, so before we go through the project, let me tell a story ki how whole picture is come in my mind कि हम किस तरीके से एक ये सारी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के पास ये क्वेरी आती है कि लाइक जो मतलब कि जो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होते हैं या जो जिनके पास इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं होता है, उन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि लाइक कि हमारे को प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, कौन कौन कंपनी होगी जो हमारे पे इतना ट्रस्ट करेगी कि वो हमें कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने को देगी। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, बट जब हम डे 1 जाते हैं, डे 1 जब हमारा विजिट होता है, तो उसी टाइम पे जब मैंने सारी चीज़ें देखी लाइक कि मेरी कंपनी में किस तरीके से सारा काम हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे को ध्यान रखना होता है कि लाइक क्या क्या चीज़ हो रही है, एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने की थी। तो ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अराउंड 3 और 4 आवर्स, तो जो भी चीज़ें मेरे को लगी कि लाइक कि क्या क्या चीज़ है जो एफिशिएंट वे में नहीं हो रही है, तो मैंने उसको लिस्ट आउट किया था। जो प्रॉब्लम मुझे लगा कि जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है लाइक अराउंड 6 मंथ्स का है, उस ड्यूरेशन में मैं किस प्रॉब्लम को एक इफेक्टिव वे में सोल्व कर पाऊंगा, उसके ऊपर फिर मैंने वर्क स्टार्ट किया। तो उसमें जो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था कि जो वाटर वॉल पैनल्स और ट्यूब्स होती है बॉयलर की, उसको मैनुअल प्रोसेस से पेंट किया जाता है। तो मेरे दिमाग में यह आइडिया है कि लाइक व्हाई नॉट वी ऑटोमेट दिस होल प्रोसेस, बिकॉज वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस था कंपनी के लिए। तो मैंने उस वे में सोचना स्टार्ट किया कि क्यों ना हम ये चीज़ करें। तो स्टार्टिंग में जो मैनेजमेंट रहता है वो हमें थम्स अप देता नहीं कि लाइक कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जाओ, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि लाइक जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना प्रेशर या फिर इस एफिशिएंट वे में हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई, बट फाइनली आई गॉट दिस प्रोजेक्ट। तो लेट वी स्टार्ट। सो द टाइटल ऑफ माय प्रोजेक्ट इज ऑटोमेटिक स्प्रे पेंटिंग एंड एयर क्लीनिंग मशीन फॉर बॉयलर वाटर वॉल पैनल एंड ट्यूब्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो मेरा था इस प्रोजेक्ट में वो ही था कि जो प्रोडक्शन टाइम है मेरा प्रोसेस का, उसको मुझे कम करना था। और उसके साथ जो भी इकोनॉमिक हम बोल सकते हैं लाइक जितना पैसा उस मैनुअल प्रोसेस में लग रहा था, मुझे उसको कम करना था, रिड्यूस करना था। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि लाइक कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो हमेशा हमारे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, थ्रू आउट द ट्रेनिंग हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम उस ऑब्जेक्टिव को हम मीट कर पाए। तो क्योंकि अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि लाइक हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है वो उस तरीके से हो सकता है कि लाइक इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर वॉल पैनल्स, तो जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो मेजरली जो स्प्रे पेंटिंग मैनुअल प्रोसेस में होती है उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। और ह्यूमन एरर्स की वजह से हम जो उसकी पेंट की जो प्रॉपर थिकनेस है हम उसको मीट नहीं कर पाते। लाइक जो भी क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक कि इतनी पेंट थिकनेस चाहिए हमें, वो इतने बेटर वे में हम नहीं कर पाते हैं। उसके साथ ही जो अगर पेंट थिकनेस जो यूनिफॉर्म नहीं होती तो हमारी प्रोडक्ट की जो सरफेस क्वालिटी रहती है या फिर प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी रहती है वो डिटोरिएट हो जाती है। तो ये मेरा एक बेसिक प्रॉब्लम था कि हाँ मुझे इस चीज़ को सोल्व करना है। अगर हम इसको एक ग्राफिकल वे में देखे जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इस प्रोसेस में, लाइक उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा था, लीकेज हो रहा था, और लाइक नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस उनको मिल रहा था, रीफिल करना पड़ रहा था, ह्यूमन एरर्स थी उसमें, एयर फिलिंग थी, मतलब कि लाइक एयर से उसको स्पेटर करना पड़ रहा था, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था उनके लिए। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लाइक कि हमें किस चीज़ को सोल्व करना है, या किस जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैंने एक्चुअल में सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया कि लाइक क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको मेरे को एनकाउंटर करना है। अब नाउ कि अब जब प्रोजेक्ट्स मुझे मिल गया तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था कि मैं पूरा जो प्रोसेस है उसको थ्रू आउटली स्टडी करूँ कि लाइक कि किस वे में मेरे पास जो प्रोजेक्ट आया है या किस वे में मेरा जो पूरा ऑपरेशन है वो हो किस वे में रहा है। तो गैंट्री ऑपरेशन फॉर द पैनल प्लेसिंग, लाइक कि जो वाटर बॉल पैनल्स जो होते हैं वो अराउंड उनका अगर वेट देखा जाए तो 5 to 7 टन्स
टन का होता है एक वाटर बॉल पैनल। तो उसको प्लेसिंग करने के लिए या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हमें गैंट्री की यूज़ करना पड़ता है, गैंट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस था, लाइक ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि लाइक कि किस वे में मेरा प्रोजेक्ट जो है या फिर किस वे में जो मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, लाइक वाटर बॉल पैनल प्रॉपर वे में पेंटिंग प्रोसेस से किस वे में बाहर निकल रहा है। लाइक कि गैंट्री की प्लेसिंग के बाद उससे वेल्डिंग स्पेटर को रिमूव किया जाता है, वो भी एक मैनुअल प्रोसेस है। फिर एयर क्लीनिंग की जाती है बाय यूजिंग एयर नोजल, ताकि उसका स्पेटर रिमूव हो सके। फिर उसको मतलब पेंट की जो गन होती है उसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर स्प्रे पेंट किया जाता है, फिर उस पेंट को ड्राई करने का टाइम लगता है, फिर अगेन वापस उसको गैंट्री की साइड को फ्लिप किया जाता है, फिर सिमिलर प्रोसेस करके हम ये टोटल पूरा प्रोसेस देखने के बाद हम एक वाटर बॉल पैनल प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इससे मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि लाइक क्या क्या प्रोसेस है जिससे पेंट का जो प्रोसेस है वो निकल के जा रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही है। नाउ ये जो मेरा वर्क पीस है, लाइक ये प्रोडक्ट है जिसको मुझे पेंट करना है। तो हम देख सकते हैं लाइक ये कितना भारी है, लाइक ये 5 to 7 टन होता है, और साइज इज अप्रोक्सीमेटली ह्यूज, लाइक 40 feet is around in the length और 12 feet in width also। तो इस तरीके के जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हैंडल करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम गैंट्री की हेल्प लेते हैं। नाउ अब जो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन की थी, लाइक जब भी जो प्रोसेस हो रहा था उसके अंदर, तो ये मैंने सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट जो थी उसके अंदर मैंने सारी चीज़ कैलकुलेट की कि लाइक एक साइड को पेंट करने में पैनल में कितना टाइम लग रहा है, उसमें कितनी बार रिफिल करना पड़ रहा है, एयर क्लीनिंग में कितना टाइम लग रहा है, पैटर को रिमूव करने में कितना टाइम लग रहा है, गैंट्री ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है। अगर हमने इसको सम अप किया तो अराउंड जो एक वाटर बॉल पैनल जो है मेरा वो फुल्ली फिनिश्ड होके वेट पेंटिंग प्रोसेस से अराउंड 9 आवर्स में बाहर निकलता है प्रोडक्शन साइकिल से। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो टाइम है वो है 9 आवर्स। अब मेरा टारगेट था कि मेरे को 9 आवर्स से कम टाइम में इसको करना है, ताकि मैं अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको मैं मीट अप कर सकूं। अब अगर ग्राफिकल वे में देखा जाए तो जो मेजर टाइम जो है वो हमारा 190 मिनट्स अराउंड स्पेटर रिमूव में लग रहा है। इसी तरीके से मैंने सब डिवाइड कर दिया कि लाइक मेरे माइंड में ये चीज़ पिक्चर क्लियर रहे कि लाइक कि क्या क्या जो कंपोनेंट्स है इस प्रोसेस के वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टाइम को कम करना था। लाइक अब मैंने बेसिक मेजरमेंट्स ले लिए कि लाइक जो कंपोनेंट है या जो वर्किंग जोन है मेरी मशीन का वो कितना होने वाला है। तो लाइक जो हाइट थी वाटर बॉल पैनल की मैक्सिमम 3 फीट हो गई थी, लेंथ जो थी वाटर बॉल पैनल की वो 40 फीट हो गई थी, और वेथ जो थी मेरी 10 फीट हो गई थी। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरी मशीन का वर्किंग जोन कितना होने वाला है। अब उसके बाद आती लाइक कि हमने सारी चीज़ देख ली, कंपनी में जो काम हो सकता है वो हमने कर लिया। अब हमारा काम होता है रिसर्च करना कि लाइक इस वाले प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को हम किस वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए जितने भी सेम प्रॉब्लम के जो रिसर्च पेपर थे उनको मैंने स्टडी किया। सिमिलर कंसेप्ट की जो भी मशीन थी जो इसी कंसेप्ट पे बोल सकते हैं कि इस सेम कंसेप्ट पे ऑपरेट होती है, उसको मैंने स्टडी किया। जो कंपनी के जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स थे उनसे मैंने बात की कि लाइक हम किस वे में ये मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो डोमेन एक्सपर्ट्स थे लाइक जो भी कॉलेज के मेंटर्स हैं उनसे मैंने बात की। तो रिसर्च पेपर में मैंने पेंट नोजल की एफिशिएंसी, सीएनसी मशीन्स की जो एफिशिएंसी है उसको किस वे में हम डील कर सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च पेपर पढ़े। उसके बाद सिमिलर कंसेप्ट की मशीन में अगर हम देखे जाए तो 5 एक्सिस डोर पेंटिंग मशीन्स को स्टडी आउट किया कि लाइक वो किस वे में प्रोसीड होती है। फिर मेटल प्लेट सीएनसी मशीन, क्योंकि सीएनसी मशीन ही हमारा बेसिक था प्रिंसिपल, तो मैंने वो सारी चीज़ें मशीन देखी। इंटरेक्शन किससे किया कि लाइक जो भी प्रोडक्शन के हेड थे, क्वालिटी के हेड थे और जो डिज़ाइन के हेड थे उनसे मैंने बात की। सिमिलर जो डोमेन में मेरे कॉलेज में जिन्होंने सेम डोमेन में पीएचडी की है या फिर उन्होंने एक्सपर्टीज इसके अंदर लिए, मैंने उनसे बात की। जो इस डोमेन से जुड़े थे उन सबसे बात की। उसके बाद अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, हमने पूरा इसका रिसर्च कर लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया कि किस वे में हमें सॉल्यूशन देना। अब बात आती है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन फॉर्मुलेट हुआ वो ये हुआ कि 5 एक्सिस स्प्रे पेंटिंग मशीन हमें बनानी है। तो अगर हम 5 एक्सिस की बात करें तो 3 एक्सिस जो होती है मेजर वो हमारी मशीन की लाइक एक्स वाई और जी एक्सिस, और 2 एक्सिस है वो गन की, वो है ए और बी। लेटर ऑन हम देखेंगे कि किस वे में ये एक्सिस को मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया है।
ये एक बेसिक डिज़ाइन था जो मैंने पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये एक पॉइंट डिज़ाइन है कि लाइक हम किस वे में आइसोमेट्रिक डिज़ाइन था वो मैंने दिखाया है। नाउ जो अब मैंने डिज़ाइन बनाया अब उसका लाइक कि मैंने किस वे में उस डिज़ाइन को प्रोसेस किया है कि लाइक मैंने रैंडमली ना बना के मैंने जो एक इंजीनियर्ड वे में जो होता है लाइक कि प्रॉपर एनालिसिस करके हर एक चीज़ का उस वे में मैंने इसको आगे प्रोसीड किया। लाइक कि अगर हम सिमुलेशन की बात की जाए तो स्टैटिक सिमुलेशन एंड मॉडल सिमुलेशन और टोपोलॉजी एनालिसिस, ये 3 मेजर सिमुलेशंस मैंने यूज़ किए ताकि मैं जो मेरी डिज़ाइन है उसको वेरीफाई कर सकूं कि ये उस हार्श कंडीशन, उस रफ कंडीशन में भी एफिशिएंट वे में बिना ह्यूमंस को प्रॉब्लम या बिना कोई एक्सीडेंट होए ये सारी चीज़ बेटर वे में वर्क कर सकती है। लाइक अब स्टैटिक सिमुलेशन और मॉडल सिमुलेशन को मैंने 2 मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई किया, लाइक HSL है, हाई स्ट्रेंथ लॉइंग स्टील और स्ट्रक्चरल स्टील। 2 मटेरियल मैंने चूज किए क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं और एक पॉइंट ये भी था कि लाइक ये मेरी कंपनी के अंदर भी लाइक कि दूसरे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो मेरा दिमाग में एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि लाइक जब मटेरियल कंपनी में पहले ऑलरेडी आ रहा है तो शायद उनके पास बेटर परचेजर होगा जो कि उनको एफिशिएंट वे में वो कम कॉस्ट के अंदर उनको मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो उससे मेरी कॉस्ट जो रहेगी मशीन की वो और भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने फिर ये दोनों चीज़ें मैंने 2 मटेरियल मैंने चूज कर लिया। नाउ कि अब मैंने प्रोसेस कैसे किया, लाइक टोपोलॉजी एनालिसिस जो रहता है उससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइक जो मशीन हम बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार हमें ये होता है कि मशीन को हम ओवर डिज़ाइन कर देते हैं। ओवर डिज़ाइन करने की वजह से क्या होता है कि लाइक हमारा जैसे कि वेट अनड्यू वेट या फिर हम ज़्यादा वेट की मशीन बना देते हैं तो उसमें हमारे को ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है। उस वजह से फिर मैंने टोपोलॉजी एनालिसिस किया और उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रखे लाइक कि जो मेरा मास है वो 40% ही रिड्यूस हो, उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज तक रहे, उससे कि ये बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। और बार बार उसकी मैश की रिफाइनमेंट की ताकि मेरे को अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स मिले, बार बार उसकी आइट्रेशन की ताकि जो भी रिजल्ट्स मुझे मिले वो जितना क्लोज हो सके प्रैक्टिकल वे में मिले। सिमिलर वे में फिर मैंने ये जो टोपोलॉजी एनालिसिस किया तो जो मेरा फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल बीम था उसका अगर हम देखें कि बिफोर टोपोलॉजी एनालिसिस और बिफोर जब मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया था उससे पहले जो मेरा बीम का जो वेट था वो अराउंड 274 kg था और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम आई विल गेट 165 kg। तो हम देख सकते हैं कि लाइक हम किस वे में सिमुलेशन की हेल्प से हम हमारी डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं उसका वेट। और उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी वो 81 हर्ट्ज थी तो उसको मैंने 131 हर्ट्ज जो है वो लेके आए। तो इससे क्या हो गया कि मेरी जो गैंट्री थी वो और ज़्यादा स्टेबल हो गई थी। अब बात करते हैं स्टैटिक सिमुलेशन की। तो स्टैटिक सिमुलेशन के अंदर सिमिलर वे में मैंने सारी प्रोसेस की। अब स्टैटिक सिमुलेशन में जो मैंने पहला जो सिमुलेशन किया वो हाई स्ट्रेंथ लो लॉय स्टील के ऊपर गया, क्योंकि इसका जो यंग्स मॉड्यूलस रहता है वो स्ट्रक्चरल स्टील के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। जब यंग्स मॉड्यूलस जो हमारा है वो ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात जो हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है या जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी मशीन है उसका डिफ्लेक्शन जो है वो हमें कम से कम करना है। क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो जो हमारा वाई एक्सिस के अंदर जो टूल पोस्ट जो है या फिर हमारी जो गन है वो मूव होने वाली है वो कहीं ना कहीं जाके स्टक सी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, बेंडिंग होगी तो उस स्मूथ वे में लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे को सब जो HSLA मटेरियल हमने वो यूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी SS जो होता है स्ट्रक्चर उसके कंपेयर में ज़्यादा रहती है। अब हम देखते हैं कि लाइक किस किस वे में मैंने किया। लाइक कि जो मेन मेजर फोकस था वही था कि उसका इक्विवेलेंट स्ट्रेस और डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन और टोटल डिफॉर्मेशन कि पूरी जो हॉरिजॉन्टल गैंट्री उसका टोटल डिफॉर्मेशन कितना आएगा, डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन जो Z एक्सिस में है ये वो कितना मैक्सिमम है और इक्विवेलेंट स्ट्रेस उसमें स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होने वाला है। तो अगर हम देखें तो लाइक टोटल डिफॉर्मेशन जो है पूरी गैंट्री का वो अराउंड 0.0208 mm। तो हम नेक डाई से इसको देख नहीं सकते। और ये फिर जो एक ऑफिशियल या फिर जो भी दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर सिमिलर कंसेप्ट की मशीन्स बन रही है तो वहाँ पे 0.5 mm तक का जो डिफ्लेक्शन है
टोटल डिफ्लेक्शन, वो ओके होता है कि लाइक उतना डिफ्लेक्शन हम लेके चल सकते हैं कि हाँ यहाँ तक हम एक सेफ लिमिट में प्ले करते हैं। तो उस वे में मैंने ऑप्टिमाइज करके मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया कि लाइक कि टोटल डिफॉर्मेशन मेरा उस लेवल तक ना पहुंचे जिस लेवल पे मेरे को ये कोई भी प्रॉब्लम इनकाउंटर हो उसमें। तो जो उसमें फोर्स जो लिया मैंने लाइक इस फेस के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था अराउंड 1000 न्यूटन का, जो अराउंड 100 kg का होता है। तो मैंने जितना हार्श या जितना एक बोल सकते कि जितना रफ से रफ कंडीशन हो सकती है उस कंडीशन में मैंने इसको टेस्ट आउट किया और उसके बाद मैंने ये रिजल्ट्स निकाले। लाइक फिर सिमिलर वे मैंने स्ट्रक्चरल स्टील के ऊपर किया, फिर मैंने उसके रिजल्ट्स निकाले कि लाइक उसमें क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें क्या डायरेक्शन डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन क्या क्या आ रही है। सिमिलर वे के अंदर फिर मैंने उसके साथ लेग्स अटैच करके, जो गैंट्री के साथ लेग्स अटैच करके फिर मैंने वापस उसका एनालिसिस किया कि लाइक जब मेरा ओवरऑल सिस्टम उस पर रन होने वाला है तो तब कितना स्ट्रेसेस, तब कितनी डिफॉर्मेशन उसके अंदर आनी है, ताकि हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव है, और एक उस रियलिस्टिक और फिजिबल डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हमें एक बेटर परफॉर्मेंस और आउटपुट दे सके फाइनल में। नाउ बात आती है जब मॉडल सिमुलेशन। मॉडल सिमुलेशन जो है लाइक हमने काफ़ी बार ऐसा देखा कि लाइक जब भी हम रोटरी डायनेमिक्स रहती है या फिर जब भी कोई रोटेशन वाली जो बॉडीज होती है लाइक मोटर्स हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है कि जो मोटर की जो फ्रिक्वेंसी है और जो फाउंडेशन जिसके ऊपर हमने मोटर या फिर वो रखी है, अगर उन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे सिस्टम की ज़्यादा रहेगी, उतना बेटर और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी मशीन की रहने वाली है। ये चीज़ माइंड में रख के फिर मैंने मॉडल सिमुलेशन किया, सिमिलर वे के अंदर दोनों मटेरियल के ऊपर अप्लाई किया। तो हमने मॉडल सिमुलेशन 3 चीज़ों पर फोकस किया, लाइक कि किस तरीके का मॉड शेप बन रहा है, कि लाइक मॉड शेप मीन्स कि लाइक हाउ दिस कर्व्स और हाउ दिस मॉड शेप्स आर टेकन आउट आफ्टर द मॉडल सिमुलेशन। एंड सेकंड थिंग इज कि डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन और टोटल डिफॉर्मेशन के साथ मैंने नेचुरल फ्रिक्वेंसी को अनकाउंट किया। तो हमारा मेन पर्पस था इन चारों चीज़ों को पॉइंट आउट करने का। लाइक अब हम देखें तो जो डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन है जो 0.0138 mm आ रहा है, और उसकी टाइम पे अगर हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी देखें तो 131 हर्ट्ज आ रही है। अब ये चीज़ यहाँ से हम ये चीज़ देख सकेंगे जब जो मटेरियल हमारा वो HSL है। लाइक अगर हम एक जो पॉइंट रहता है कि लाइक हम किस तरीके से इलास्टिक मॉड्यूलस को चेंज करके हम किस तरीके से नेचुरल फ्रिक्वेंसी को बेटर कर पाते हैं, वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। लाइक जैसे अगर हम देखें कि HSLA जो है उसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो आ रहा है अराउंड 100 हर्ट्ज, और जो सबसे ड्रास्टिक जो मेरा फेलियर हो सकता है मॉडल सिमुलेशन के अंदर, वो अराउंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 868, मतलब करीब 850 हर्ट्ज के अराउंड अगर मेरी फ्रिक्वेंसी अटेंड होती है तो इस शेप में जो है मेरा बीम है, जो गैंट्री बीम है, वो इस शेप के अंदर जाके एक एक्सीडेंटल फॉर्म या इस फॉर्म में डिफॉर्म होने लग जाएगा। तो इससे हमें क्लियर हो गई कि लाइक जो ड्रास्टिक कंडीशन हो सकती है वो कितनी पहुंच सकती है। इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि लाइक किस वे में मेरी जो बीम है वो किस वे में टूट सकती है। अब सिमिलर चीज़ मैंने स्ट्रक्चरल स्टील के साथ की। अब स्ट्रक्चरल स्टील में अगर हम देखें तो जहाँ पे हम 100 हर्ट्ज HSLA में ले पा रहे थे, वो यहाँ पे 97.89 हर्ट्ज में ले पा रहे हैं। इससे हमने ये चीज़ देखी कि लाइक हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी HSLA में ज़्यादा थी, स्ट्रक्चरल स्टील में कम है। स्ट्रक्चरल स्टील में कम हो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरल स्टील जो हमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है जितनी हमें HSLA। तो यहाँ से फिर मैंने एक जो राइट अप्रोच होती है उस वे में मैंने उनको ये बताया कि लाइक हम वाई HSLA वी आर गोइंग टू यूज। तो उस वे में फिर मैंने इनको स्ट्रक्चर स्टील का जो डिज़ाइन था उसका और HSLA दोनों का मैंने उनको कंपेयर करके दिया। और इसमें जो सबसे मेन है जैसे SS के अंदर जो हमारी ड्रास्टिक कंडीशन आ सकती है वो अराउंड 847 हर्ट्ज के अराउंड आ सकती है, और इस मॉड शेप के साथ वो फेलियर के अंदर जाएगा। अब बात आती है लाइक कि मैंने जो डिज़ाइन था वो किस, जो डिज़ाइन के जो व्यूज़ है जो सॉलिडवर्क्स में मैंने डिज़ाइन किया वो व्यूज़ लाइक उसके कंपोनेंट्स के हम बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक 3 मेजर जो मशीन की एक्सिस थी उसमें जो वाई एक्सिस थी वो अलोंग दिस जो कि 45 फीट्स लॉन्ग थी, और वाई एक्सिस जो है 12 फीट्स लॉन्ग है, एंड जी एक्सिस जो है
वो ये है जो कि टूल पोस्ट की वाई एक्सिस की जो डेप्थ है उसको कंट्रोल करने वाली है। अब बात करते हैं गन की एक्सिस। गन की जो एक्सिस है वो 360 रोटेशन की कैपेसिटी है उसकी, लाइक वो पूरा राउंड कर सकती है। और जो गन की जो बी एक्सिस है वो 180 डिग्री रोटेट कर पाएगी। अब उसका क्लोजअप व्यू, अब लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। लाइक ये गैंट्री के लेग्स है, ट्रांसफर बीम है, और इसका गैंट्री गर्डर है, सीसी ब्लॉक है जो इसके जो वाइब्रेशंस होंगे उनको एब्जॉर्व करने के साथ साथ उसका एक जो रिजिड फाउंडेशन है, जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। क्लोजअप व्यू में देख लेते जो रेल ट्रैक्स लगा रखे हैं जो कि इनको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह जो रहता है उसके अंदर मोशन ट्रेवल करने के लिए जो लीनियर मोशन है वो हमें प्रोड्यूस करके देने में जो हेल्प करेगा, और उसको गाइड की तरह हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब लाइक साइड व्यू के अंदर हम बात करें तो लाइक जो मशीन जो है वो रेल ट्रैक और उसके साथ जो अटैच है उसके अंदर लाइक रेल व्हील्स लगा हुआ है, और जो होल्डिंग शाफ्ट होल्डिंग ब्लॉक्स लगे रखे हैं जो कि उसको एक रिजिडली जो व्हील्स रहते हैं उसको रिजिडली बाउंड कर सके, लाइक कि उसको कहीं भी ऐसे लाइक कि डिस्प्लेसमेंट ना हो उसका, इस वजह से इसको उस तरीके से माउंट किया। और अगर हम इसकी एक्सिस के ऊपर देखें तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने जो सर्वो माउंट की है जो कि वाई एक्सिस की फीड को कंट्रोल करने वाली है। लीनियर एक्चुएटर जो है मेरी वाई जी एक्सिस को कंट्रोल करने वाली है, जो कि उसकी जो स्टॉक लेंथ है वो अराउंड 3 फीट के अराउंड है, क्योंकि जब हमने वर्किंग जोन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लाइक कितना वर्किंग जोन हमें रिक्वायर है, तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ देखी लाइक कि मेरी जो लीनियर एक्चुएटर है उसकी स्टॉक लेंथ कितनी हमें रिक्वायर है। अब अगर इसका क्लोजअप व्यू देख ले मशीन का तो थोड़ा लाइक ये रेल ट्रैक्स के साथ रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म वाई एक्सिस में मैंने यूज़ किया है, और उसके साथ रेल सपोर्ट जाके उसको जो लीनियर बियरिंग पिलो ब्लॉक्स दे रखे हैं मैंने, वो इसको सिंपली जो रिजिड जो ज़्यादा वेट वाली चीज़ होती है उनको सपोर्ट करने में ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ साथ जो वी सपोर्ट रेल्स जो रहती है वो अगर हमारी मशीन के अंदर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जैसे हम कई बार हम डिज़ाइन कर देते हैं लेकिन प्रोडक्शन में वो चीज़ फिजिबल नहीं होती है, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं एरर्स आती है लाइक, तो अगर हम ये चीज़ें यूज़ करें लाइक ये वी रोलर्स, ये लीनियर पिलो ब्लॉक्स बियरिंग जो होते हैं हमारे, उसमें हम 2 से 3 mm का जो वेरिएशन है हम उसको एनकाउंटर कर पाते हैं बेटर वे के अंदर। ये गन के डिफरेंट व्यूज़ है कि लाइक मैंने किस वे में ऑटोमेटिक गन को यूज़ किया है, अब किस वे में मैंने ये गन सेलेक्ट की है, क्या गन का जो ऑटोमेटिक गन होती है वो उसका क्या प्रोसेस है। लाइक इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एक फीचर्स होते हैं लाइक हम उसकी फैन वेट या फिर हम जो उसके पैंट इनलेट और उसको कितना हम ऑटोमाइज कर सकते हैं, ये सारे कंट्रोल्स हमें एक ऑटोमेटिक गन के ऊपर हमें मिल जाते हैं, तो मैंने वो पिक कर लिया इससे। अब जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है कि लाइक हर एक एक्सिस किस वे में मोशन कर रही है उसका व्यूज है कि लाइक जो वाई एक्सिस है वो किस वे के अंदर मेरी ट्रेवल करने वाली है, और एक्स एक्सिस किस वे में ट्रेवल करने वाली है। यहाँ पे एक सर्वो मोटर्स मैंने यूज किया है, और जो व्हील्स के नीचे जो ये वाला व्यू है उसका एक क्लोजअप व्यू लाइक ये किस तरीके से ये कनेक्टेड है। अब जो मैंने हॉरिजॉन्टल गैंट्री जो मैंने डिज़ाइन की थी उसमें इनिशियल फेज में मेरी गैंट्री की जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी नहीं थी जितनी फिर मैंने मतलब कि लाइक जो मुझे 100 हर्ट्ज के अराउंड जो फ्रिक्वेंसी चाहिए थी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो मुझे हॉलो गैंट्री से नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए फिर मैंने हॉरिजॉन्टल बीम के अंदर रिब्स जो डिज़ाइन की मैंने कि लाइक रिब्स क्या होती है कि लाइक उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ देने का काम करती है, तो उसके लिए फिर मैंने 2 रिब्स डिज़ाइन की 16 mm थिकनेस प्लेट की अराउंड हैविंग द लेंथ ऑफ 1000 mm। तो उससे फिर मेरा जो पर्पस था कि 100 हर्ट्ज से ज़्यादा मेरी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो पर्पस मैंने यहाँ से सोल्व किया। ये एक बेसिक फैक्ट्री व्यू की लाइक अगर जो मशीन है वो अगर फैक्ट्रीज के अंदर जाने के बाद किस तरीके से उसका व्यू होने वाला है। तो अब मशीन हमने डिज़ाइन कर लिया लाइक कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैंने डेल्टा कंट्रोलर्स कंपनी है उनकी मैंने हेल्प ली, लाइक उनके एक्सपर्ट्स से मैंने बात की कि लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ है या ये जो भी प्रॉब्लम है मेरे को उसको रन करने के लिए क्या क्या चीज़ की हेल्प करनी पड़ेगी, किस वे का सॉफ्टवेयर है जो मुझे इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सारी
चीज़ें मुझे थ्रू आउटली गाइड की कि लाइक कि आप किस वे में कौन सी मोटर यूज़ करने वाले हो, कौन सी सर्वो यूज़ करने वाले हो। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ से सेलेक्ट आउट की कि लाइक क्या चीज़ है जो मेरी मशीन में यूज़ होने वाली है और कौन सी है जो मुझे सेलेक्ट करनी है। ये एक बेसिक फ्लो डायग्राम है कि लाइक कि मशीन किस तरीके से वर्क करने वाली है। लाइक जो कंप्रेस एयर थी वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर प्रोवाइड थी, क्योंकि वो दूसरे प्रोसेस भी कंप्रेस्ड एयर से वर्क हो रहे थे, तो वो मुझे इजीली वो चीज़ें मिल रही थी। तो फिर मैंने उसी को यूज़ किया और डायफ्राम पंप जो था वो मैंने अलग से इसके अंदर कंपोनेंट ऐड किया। फिर पैन टैंक्स और ये पूरा फ्लो है उसी डायग्राम से लाइक डायफ्राम पंप जो उसको पंप आउट करता है पैंट को, और फिर पैंट की नोजल के थ्रू ये ऑटोमेटिक पैंट नोजल के अंदर जाता है और उससे फिर एयर के थ्रू, एयर का मीडियम की वजह से ऑटोमाइज होके वो स्प्रे होता है। और जो ये ऊपर जो ब्लॉक डायग्राम दे रखा है वो एक लाइट कंट्रोलर का दे रखा है, बट सिमिलर वे के अंदर ही सीएनसी का जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो चार्ट होता है वो भी सिमिलर वे में ही होता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है कि लाइक आप उसके अंदर ड्राइवर्स थोड़े अलग यूज़ करते हो। अब हमने ये ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें दिमाग में ये आ गया कि लाइक कि मैनुअल प्रोसेस और ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम क्या चीज़ एडवांटेज क्या ले पा रहे हैं। लाइक कि मैनुअल से हम ऑटोमेटिक में हम क्या चीज़ इंप्रूव कर पा रहे हैं। लाइक कि जो टाइम था मैनुअल प्रोसेस में वो ज़्यादा था, तो उसको हमने ऑटोमेटिक में कम कर दिया। यूनिफॉर्म थिकनेस जो पेंट की थी वो हमने मैनुअल प्रोसेस में हम इतना प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वो हम ऑटोमेटिक में कर पा रहे थे। लीकेज जो था पेंट का वो ख़त्म कर दिया हमने, क्योंकि इसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम थी नहीं। रीफिलिंग हमने बार बार करनी नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्ट पेंट जो था वो टैंक से ही लिया जा रहा था। और एक्यूरेसी जो थी हम इजीली मेंटेन मैनुअल प्रोसेस में नहीं कर पा रहे थे, वो हम ऑटोमेटिक में कर पा रहे थे। और जो मेन लेबर कॉस्ट थी उसको हमने कम कर दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस था तो उसमें सिर्फ एक ऑपरेटर और एक हेल्पर की हमें नीड होती थी, रेदर देन कि यहाँ पे 4 हेल्पर और 2 ऑपरेटर की हमें नीड होने वाली थी। तो अगर हम एक बार इसका क्विक रिकैप देखें तो लाइक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था हमने, फिर सॉल्यूशन देखे, किस वे में मैंने सॉल्यूशन फॉर्मुलेट किया, किस वे में मैंने डिज़ाइन फॉर्मुलेट की, किस वे में मैंने कंट्रोल पैनल या फिर अपनी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है उसको डिज़ाइन किया। उसके साथ फिर मैंने एडवांटेज देखे कि लाइक किस वे में मैनुअल प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो हम ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ हम जा सकते हैं। अब उसके बाद आती है कि लाइक हमने सॉल्यूशन दे दिया, लाइक अब बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि लाइक हम मैनेजमेंट को ये अगर हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट ये जाके देते हैं कि लाइक मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और ये चीज़ होने वाली, तो वो यही चीज़ बोलेंगे कि लाइक क्या प्रूफ है कि लाइक इतने टाइम में तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो हम इतना कॉस्ट लगा रहे हैं इस पे, ये कितने टाइम में हम वापस रीपे कर पाएगी या फिर आरओआई हो पाएगी, उसके अंदर हम किस में कितना पैसा सेव करें। तो इस चीज़ के लिए हमारे को जो भी प्रोजेक्ट हम करें उसके अंदर फिर हमें एक कॉस्ट रिपोर्ट जो होती है वो हमें देनी चाहिए, ताकि उनको बेटर डिसीजन जो कि लेने में हेल्प मिलती है कि लाइक ये जो चीज़ जिस चीज़ पे हमारी कंपनी है वो एक्सपेंड करने वाली है, जिस पे जितना पैसा लगाने वाली है वो क्या रियल में फिजिबल है, क्या कंपनी को फ़ायदा करेगी नहीं करेगी। तो उसके लिए फिर मैंने कॉस्ट रिपोर्ट जनरेट की। तो कॉस्ट रिपोर्ट को जनरेट करने से पहले मैंने लाइक पूरा जो मैनुअल प्रोसेस है उसकी कॉस्ट निकाली कि लाइक वो कितना निकल के आ रहा है। फिर उसको मैंने ऑटोमेटिक से कंपेयर किया, फिर मैंने उनको ये बताया कि लाइक हम इतना पैसा है वो बचा सकते हैं अगर हम ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट करें तो सिमिलर वे के अंदर लाइक अगर मैंने पेंटिंग ऑपरेशन की कॉस्ट निकालने के लाइक एक स्ट्रिप जो रहता है या फिर आप एक लैप जो होता है एक स्ट्रिप ये वाला, वो किस स्पीड से ले रहे हैं और जो ऑटोमेटिक गन है उसकी फैन विड्थ कितनी है, फैन विड्थ इन सेंस की लाइक कि वो कितना एरिया एक स्टॉक के अंदर कवर करने वाली है, और पेंट की वेलोसिटी मेरी मशीन की कितनी होने वाली है, एक्सेलरेशन टाइम डी एक्सेलरेशन टाइम, एक जो पूरी वाटर वॉल पैनल है उसमें कितना रहने वाला है, उसका वर्किंग जोन कितना है वाटर वॉल पैनल का। ये सारी चीज़ें करके फिर मैंने एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के टोटल एरिया से डिवाइड किया, तो मेरे को नंबर ऑफ पासेस मिल गए कि लाइक एक जो मेरा वाटर वॉल पैनल है उसको पेंट करने में नंबर ऑफ पासेस कितने चाहिए होंगे मुझे। फिर ये सारी चीज़ कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चल गई कि लाइक एक वाटर वॉल पैनल को पेंट करने के लिए अराउंड मेरे को 3.5 मिनट एक साइड को पेंट करने के लिए मुझे चाहिए। लाइक जो मैनुअल प्रोसेस के अंदर 23 मिनट्स में हो रही थी वो मैं यहाँ पे 3.5 मिनट्स के अंदर मैं कर पा रहा था। ये इस वे के अंदर अगर हम पूरा पेंट करें तो वो अब बात आती है कि लाइक ऑपरेशन जो है
जो हमारा मैनुअल प्रोसेस है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इसी से हमारे को कॉस्ट निकालनी थी लाइक कि तो वाटरफॉल पैनल को जो बनाने में उसमें जैसे लाइक गैंट्री और ऑपरेशन स्पेस चाहिए, मैन पावर चाहिए, ऑपरेटर्स, हेल्पर और गैंट्री इक्विपमेंट चाहिए। तो यहाँ से माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई कि लाइक क्या क्या कंपोनेंट्स है जो इस प्रोसेस से लिंक्ड है। तो अब मैंने क्या किया, उनकी पर आवर कॉस्ट निकाली कि लाइक कि 1 घंटे का अगर ऑपरेशन करते हैं या जो भी सब कंपोनेंट्स है तो उसकी कॉस्टिंग किस वे में आने वाली है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर अजम्पशन स्पेसिफिकेशंस का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें लाइक कि मैन पावर का कितना यूज़ हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने पर आवर कॉस्ट निकाली। तो लाइक गैंट्री इक्विपमेंट की पर आवर कॉस्ट अराउंड 656 रुपीज़ आ रही है। तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो भी चीज़ हमारी प्रोजेक्ट में मैनुअल में हो रही है, लाइक मैंने यहाँ पे फैन एंड इवन ट्यूबलाइट्स को भी इंक्लूड किया है, सो दैट कि हम जितना हो सके उनको एक प्रिसाइज एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सके। लाइक ऑपरेशन स्पेस जो है उसको हम किस वे के अंदर बता सकते हैं। लाइक मैंने वहाँ पे जो इंडस्ट्री की जो भी पर स्क्वायर फीट रेंट जो रहता है लाइक 5 रुपीज़ पर स्क्वायर, तो हम जितना प्रैक्टिकल वे के अंदर सॉल्यूशन देंगे उनको उतना वो बेटर फील करेंगे हमारे साथ प्रोजेक्ट करने में। लाइक अगर हम देखेंगे लाइक यहाँ पे पेंट की जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ पर लीटर, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी जो प्राइमर वगैरह मिलते हैं वो 150 रुपीज़ पर लीटर मिलते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने जितना प्रैक्टिकल जो कॉस्ट हो सकता है वो मैंने देने का उनको ट्राई किया। अब अगर हम देख लें तो कॉस्टिंग जो है पर साइड ऑफ वाटरफॉल पैनल, एक साइड को पेंट करने के अंदर जो कॉस्टिंग आती है उसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर की आती है, अराउंड 1050 रुपीज़ के अराउंड कॉस्टिंग आती है। तो उस वे के अंदर अगर हम देखें तो जो कॉस्ट है पर पैनल की वो अराउंड 2198.26 रुपीज़ आती है। तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि 2200 रुपीज़ हमारे एक साइड के जो होती है वाटरफॉल पैनल की उसको पेंट करने में आती है। अगर हम दोनों साइड को क्लब करें तो अराउंड 4400 जो है वो आती है। तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि 4500 के अराउंड जो है हमारा एक पेंटिंग का जो प्रोसेस है वाटरफॉल पैनल का वो हमारे को कॉस्ट कर रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा मेन पावर है और पेंट ऑपरेशन है। अब मैंने ये चीज़ एक वाटरफॉल पैनल के ऊपर की। अब मैंने ये बताना था कि लाइक एनुअली हम कितना खर्चा कर रहे हैं मैनुअल प्रोसेस जो हो रहा है उसके अंदर। तो मैंने टोटल वर्किंग आवर्स को यूज़ करके फिर उनको 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग उसको आगे प्रोसेस करके लाइक एक वाटरफॉल पैनल को मेरे को 9 आवर्स के अंदर करना था पेंट। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ अगर मेरी कंपनी वर्क करती है तो अराउंड 26 वाटरफॉल पैनल एक मंथ के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो मैक्सिमम जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 320 वाटरफॉल पैनल्स थे एक ईयर में। तो इसी तरीके से फिर मैंने पर मंथ का निकाला, फिर पर ईयर का कॉस्ट निकाल लिया। तो जो पर ईयर का जो कॉस्ट था मेरा मैनुअल प्रोसेस का वो अराउंड 13,71,000 के अराउंड आ रहा था, विच इज़ ह्यूज कॉस्ट। अब मैंने ये चीज़ देख ली कि लाइक मेरी मैनुअल प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि विल 5 एक्सिस CNC पेंटिंग मशीन डज इट फास्टर देन मैनुअल प्रोसेस। तो उसके लिए फिर मैंने ये कंपेयर किया कि लाइक यहाँ पे दो प्रोसेस किए मैंने, लाइक मैनुअल प्रोसेस एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस। लाइक अगर हम एयर क्लीनिंग की बात करें तो अराउंड 1800 सेकेंड्स के अंदर एयर क्लीनिंग हो रही है। रिफिलिंग जो है 120 सेकेंड्स और पेंटिंग प्रोसेस है वो अराउंड 1380 सेकेंड्स के अंदर हो रहा है। अगर हम इसको सम अप करें तो लाइक 3300 सेकेंड्स, अराउंड 3300 सेकेंड्स जो है हमारा मैनुअल प्रोसेस में लग रहा है, वही चीज़ ऑटोमेटिक में हम 420 सेकेंड्स में करके दे रहे हैं। तो हम जो टोटल जो टाइम सेव कर रहे हैं एक साइड के ऊपर वो 48 मिनट्स का हम सेव कर रहे हैं एक साइड के। अगर हम उसको दो साइड के अंदर कर लेंगे तो 96 मिनट्स जो है हम सेव करके दे रहे हैं उनको सिर्फ पेंटिंग प्रोसेस से हम। अब बात आती है कि लाइक ये जो 96 मिनट्स निकले हैं उनकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, क्योंकि ओवरऑल हमने अभी जो टाइम बचा है पेंटिंग प्रोसेस है वो 96 मिनट्स बचता है। तो उसको फिर मैंने वापस अजम्पशन लिया कि लाइक मैन आवर्स जो थे मेरे पर आवर वो कितनी कॉस्टिंग थी, पेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या था, ऑपरेशनल स्पेस की पर आवर कॉस्ट क्या थी मेरी, उस तरीके से लाइक जो पेंट वॉल्यूम जो है अराउंड जो अभी मैनुअल प्रोसेस में जो नोजल यूज़ की जाती है वो इतनी एफिशिएंट होती नहीं है, तो उससे पेन के लॉसेस होते हैं। और पेन के लॉसेस को इनकाउंट करने के लिए अगर हम ऑटोमेटिक गन यूज़ करते हैं लाइक जो NS है हो गया हमारा
और जो यूएस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बनी हुई जो स्प्रे गन्स होती है वो काफ़ी एफिशिएंट वर्क करती है। तो अराउंड जहाँ पे 8 लीटर्स रिक्वायर होता है मेरे को एक वाटर वॉल पैनल को पेंट करने के लिए, उसमें 15 to 20% वो सेव कर लेती है। तो अराउंड 1.2 लीटर्स में उससे सेव कर पा रहा था। उसकी कॉस्टिंग निकाल के मैंने ये कॉस्ट निकाली, तो अराउंड जो टोटल सेविंग आ रही थी मेरी वो अराउंड 1,91,283 रुपीज़ पर ईयर आ रही थी। ये सिर्फ पेंटिंग प्रोसेस की थी। अब जो पूरा जो प्रोसेस था, लाइक जो भी इक्विपमेंट्स मैंने यूज़ किए उनकी जो भी कॉस्टिंग थी, जो ये कॉस्टिंग्स मैंने निकाली है, लाइक कि मेरी जो पूरी मशीन है वो किस वे में कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, और किस किस कंपोनेंट को कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं ताकि कंपनी को कम से कम काम करना पड़े। लाइक मैंने उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि लाइक ये जो भी कॉस्टिंग्स मैंने यूज़ की है प्रॉपर मैंने उनसे कोटेशन लिया कि लाइक मैं अगर इतना सामान खरीदने वाला हूँ तो मेरे पास कितने में रहेगा वो। तो वो सारी चीज़ें मैंने इंडिविजुअल कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके लाइक जैसे कि विंड डिजिटल एंटरप्राइज मार्केट, और ये मार्केट का जो डेटा है जहाँ पे लाइक सीसी ब्लॉक की कितनी प्राइस हो रही है, तो एक जितना फीजिबल वे में हम कॉस्ट रिपोर्ट दे सकें उस वे में मैंने कॉस्टिंग निकाल की थी। तो जो कॉस्टिंग जो आई मेरी 15% एड ऑन करके वेरिएशन को, तो अराउंड 11,22,176 रुपीज़ जो है मशीन की मेरी निकल के आई है। अब लाइक कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है मेरी मशीन की वो कितने होने वाली है उस चीज़ के ऊपर भी देख लिया जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो भी ये सोचेंगे कि लाइक मशीन लगाने के बाद में भी तो इसमें पैसा लगने वाला है, लाइक कि कितना पैसा कितने में ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है इसकी, तो वो चीज़ मैंने निकाल के दे दी। लाइक सीएनसी ऑपरेटर हमें हायर करना पड़ेगा, तो जो एक वाटर वॉल पैनल के ऊपर जो उसकी कॉस्टिंग आ रही थी वो अराउंड 6 रुपीज़ के अराउंड आ रही थी कि अगर एक वाटर वॉल पैनल को पेंट करता है उस प्रोसेस में तो वो 6 रुपीज़ के अराउंड पड़ रहा था। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसका मेजर सोर्स है जो कि उसको पावर आउट करेगा या फिर उसको रन करेगा, तो ओवरऑल जो 320 वाटर वॉल पैनल्स थे उसको अराउंड 1200 रुपये के अंदर वो पूरा पेंट करके दे देगा। जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने यहाँ पे कम कर दिया, क्योंकि जो हमारी पावर रेटिंग जो थी पूरी मशीन की वो अराउंड 8 यूनिट्स हम बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब एक जो सॉल्यूशन था जहाँ पे हमने 96 मिनट्स हमने पेंटिंग प्रोसेस में सेव किए थे, वहाँ पे अब मैंने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए लाइक जो स्पैटर रिमूव अगर हमने स्टार्टिंग में देखा जाए तो जहाँ पे हमें 190 to 10 मिनट्स जो है हमें लग रहे थे स्पैटर रिमूव के लिए, तो उसके लिए फिर मैंने एक और उनको ऑप्शनल सॉल्यूशन दिया। तो वो ये था कि लाइक रेडियल ब्रिस्टल ब्रश जो रहता है, लाइक ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्री होती है या ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज होती है उसमें वेल्डिंग स्पैटर को हटाने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसके लिए फिर हमारे को थोड़ा ज़्यादा इक्विपमेंट्स लाइक कि जो रिस्पॉन्स कंट्रोल जो रहता है उस चीज़ की हमें नीड होती है, और जो बेटर वे के अंदर जो हमारे को एफिशिएंसी चाहिए वो हमारी सारी चीज़ जो है रेडियल ब्रश जो है वो हमें एनकाउंटर करके दे सकता है, लाइक कि बेटर फ्लेक्सिबिलिटी ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ जो स्ट्रेसेस है वो इंड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि ये कूलिंग होती है, लाइक कि उसमें थर्मल स्ट्रेसेस सरफेस के ऊपर नहीं आएंगे, तो हमारी जो क्वालिटी है वो एकदम ओके रहेगा। अब बात आती है कि रेडियल ब्रश यूज़ करने से, ये जो ऑप्शनल सॉल्यूशन उसको यूज़ करने से हम क्या चीज़ कर सकते हैं, लाइक उसमें कितना पैसा हम सेव कर सकते हैं उस चीज़ में। लाइक कि एक पास जो है वो 28 सेकेंड्स में होता है, तो उसको अगर हमने टोटल समअप किया तो अगर हम ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो अराउंड हम 5 आवर्स जो है उसका हम सेव कर पा रहे हैं। और 5 आवर्स जो सेव किए उससे हम कॉस्ट क्या क्या बचा पा रहे हैं, लाइक कि मैन पावर हमारा 5 घंटा कम काम करेगा एक वाटर वॉल पैनल पे, तो वहाँ से मैंने ये कॉस्ट निकाल ली। ऑपरेशनल स्पेस, क्योंकि 5 घंटे पहले ही अगर हमारा वाटर वॉल पैनल बन जाएगा तो जो ऑपरेशनल स्पेस है वो जल्दी से वैकेंट हो जाएगा, तो होल्डिंग कॉस्ट खत्म हो जाएगा उसका। तो इससे मैंने जो कॉस्ट जो फाइंड आउट हुई वो अराउंड हुई 4,17,000 के अराउंड हम यहाँ से सेव कर पा रहे थे। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो लाइक एयर क्लीनिंग और स्प्रे पेंटिंग का जो सॉल्यूशन है वहाँ से हम 96 मिनट सेव कर पा रहे थे, और 1,91,000 के अराउंड हम उससे मनी सेव कर पा रहे थे पर ईयर। और रेडियल ब्रिस्टल ब्रश से हम अराउंड 4,17,000 हम सेव कर पा रहे थे, और 330 मिनट्स हम उससे टाइम सेव कर पा रहे थे, और मशीन की कॉस्ट हमारी अराउंड 11,22,000 हो रही थी। तो अगर हम इसको समअप करें तो लाइक
अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन लाइक एयर क्लीनिंग और स्प्रे पेंटिंग के साथ साथ अगर रेडियल ब्रश को यूज करें, तो हम जो एक वाटर वॉल पैनल है वो 1.9 आवर्स, तो अराउंड 2 आवर्स के अंदर हम प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ देखी कि लाइक 9 आवर्स को मैंने 2 आवर्स में कर लिया, लाइक कि मैंने यहाँ पे टाइम कम कर लिया। और अगर हम केवल एयर क्लीनिंग के साथ जाते हैं और वाटर वॉल मतलब स्प्रे पेंटिंग के साथ जाते हैं, इस वाले सॉल्यूशन के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं 7.4 आवर्स, तो अराउंड 7.5 घंटे के अंदर मैं वो वर्क कर पाऊंगा। तो अराउंड फिर भी मैंने 1.5 आवर्स उनका सेव कर लिया यहाँ पे। बट अगर हम रेडियल ब्रश के साथ जाते हैं तो इसके अंदर हमें 7 to 8 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इनको एड ऑन करें तो अराउंड 18 लाख की ये मशीन होने वाली है। तो ये चीज़ पूरी जो मशीन अगर हम दोनों सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो अराउंड 18 लाख का इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। तो इस वे में मैंने उनको एक रियलिस्टिक अप्रोच प्रैक्टिकल डेटा के साथ मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया कि लाइक आप इस वे में इतना पैसा सेव कर सकते हैं, और बेटर वे के अंदर हम उनको एक डिसीजन लेने के लिए अप्रोच किया कि लाइक आप बेटर वे में उसको मैनेजमेंट को मैंने ओके किया, तो फिर वहाँ से मेरा प्रोजेक्ट फाइनल हुआ। Okay, so I think Salesh, you can be obvious now. You can show. We can come back to our normal meeting. Yes. Yes. Okay, so I think now some Salesh, इसके बेस पे मेरे को ये बताओ, आपने जो उनको ऑप्शन सजेस्ट किए, ये और कहाँ एप्लीकेशन है इसका, दिस एक्टिविटी, वेयर डू यू फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस? तो लाइक अगर जैसे इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हमारा 5 एक्सिस CNC मशीन जो होती है, लाइक जो उसका टूल पोस्ट है, अगर आपने देखा होगा कि जो गन की A और B एक्सिस है, अगर हम गन की A और B एक्सिस के साथ भी प्ले करें तो अराउंड हम हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट मशीन्स के हैं वो हम निकाल सकते हैं। लाइक हम इससे वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर। स्प्रे पेंटिंग के साथ आप वुड राउटर 5 एक्सिस मशीन पे जा सकते हो, पॉलिशिंग मशीन के साथ जा सकते हो, हम मोल्डिंग मशीन के साथ जा सकते हो, आप स्टोन कटिंग मशीन के साथ जा सकते हो, फूड प्रोसेसिंग पिक एंड प्लेस के साथ जा सकते हो आप, और फिनिशिंग वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ जा सकते अच्छा, हो। तुम कोई ऐसा आइडिया दे इवन सकते हो जो बहुत बहुत कम बजट पे, दिस मशीन यू आर टॉकिंग अबाउट इज 2 डिजिट lakhs रुपीज, तो अगर बहुत ही चीप पे बनानी है, 1 लाख से कम कोई मशीन बनानी है जिसमें इन्वेस्टमेंट इज नॉट ह्यूज बट वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ दैट, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हिच मशीन डू यू सजेस्ट? सर उसके लिए फिर डिपेंड करता है कि मतलब कहीं ना कहीं फिर उसमें परफॉर्मेंस जो है उसको हम उतना अप टू द मार्क नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली हम इतने में कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर हमारे को एक अलग इनोवेटिव अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे को एक उस वे में जाना पड़ेगा कि लाइक हम इस वे, उसके अंदर हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट जो है मिनिमम हो। ओके, तो अगर जैसे कि लेट्स सपोज कि ये पेंटिंग प्रोसेस है, तो अगर पेंटिंग प्रोसेस में अगर वो इस मशीन को अडॉप्ट नहीं करना चाहे तो वो एक काम कर सकते हैं लाइक कि वो जो उनकी स्प्रे नोजल्स है उसको अपडेट कर सकते हैं, लाइक जो मैनुअल प्रोसेस में वो यूज़ करें। तो अगर हम वो 30,000 या 35,000 का इन्वेस्टमेंट करके अगर वो स्प्रे पेंटिंग गन को भी अलग कर दे या नई यूज़ कर दे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, तो वहाँ से हम पैसा सेव कर सकते हैं। या फिर वो एक स्टैटिक एक ही डायरेक्शन की मशीन बना दे, अच्छा मेरे को ये यूनिडायरेक्शनल बताओ जो। सलेश, ये आपका जो आपने मशीन बनाई, इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे ये ओनली मास स्केल लार्ज स्केल के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तभी इसको यूज कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली वायबल तभी होगा अगर लार्ज स्केल पे कुछ चल रहा है। नंबर 2, कुछ ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन जैसे ओवरहेड अगर आपको करनी है, पेंटिंग करना है, तो विल इट वर्क इन दैट सिचुएशन आल्सो? यस सर, क्योंकि ये जो मशीन है सिर्फ वाटर वॉल पैनल को डिजाइन या फिर पेंट करने के लिए नहीं बनेगी। कोई भी जॉब जो कि इसके वर्किंग जोन के अंदर रखी जा सके, वर्किंग जोन जो है इसका लाइक ये 40 फीट इसका लॉन्ग है और वेथ इसकी 10 फीट है और हाइट इसकी 3 फीट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर रख दे और इसका कैड मॉडल जो है हम सिस्टम के अंदर डाल के फिर वहां से हम उसमें कोड जनरेट करके फिर उसको हम पेंट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। नहीं तो आपको ऑब्जेक्ट को मूव इसकी करना है, रिलेटिव मूव, या इसको मूव करना है मशीन को? मशीन मूव होएगा,
उसकी एक्सिस मूव होएगी, जो क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है, लाइक 5 to 7 टन को हम मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मोटर्स, उसमें पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाली है। तो पावर ज़्यादा कंज्यूम होएगी तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी, लाइक कि उस बेटर वे के अंदर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसमें फिर हमारे पास जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वो नहीं हो पाती है बेटर वे के अंदर। और वो एक एक ऑप्टिमाइज वो नहीं है, लाइक कि हमने प्लानिंग मशीन और जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर भी हमने देखा है कि लाइक शेपर मशीन, प्लानिंग मशीन, उसके अंदर जैसे हम बड़े स्लैब्स को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कई बार हम जैसे कि टेबल को हम स्टेशनरी रखते हैं, टूल को मूव करवाते हैं, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टडी करके वर्क किया। Okay, I think next mentors can ask now. Palani sir. सलेश, आपने ये मशीन एक्चुअल में बनाई? हाँ सर, प्रोजेक्ट इज ओके, बट अब जो उनका परचेज डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल करके बता देंगे, फिर अब उनका आपने कंफर्मेशन में मतलब लाया है। कंपोनेंट खरीद के डिजाइन करने के बाद एक्चुअल में आपने बनाया उसको, राइट? नहीं सर, सर अभी नहीं बनाया। एक्चुअल में अभी फैब्रिकेशन नहीं हुआ है, अभी इसका एक्चुअल में प्रपोजल, फैब्रिकेशन नहीं हुआ है। हाँ अभी इसका प्रपोजल सबमिट हुआ है कंपनी के साथ, और उनका मेरे पास मेल भी आया कि लाइक ये जो उनका हेड। बट तो शैलेश मेनी आपको टाइम इसमें लगता नहीं है कि अगर आपने मान लिया केवल डिजाइन किया, दिस इज टोटली थ्योरेटिकल डिजाइन, राइट? हाँ तो प्रैक्टिकली जब तक आप इसका ट्रायल नहीं करोगे, ठीक है, एक बार देखो नहीं, क्योंकि जो आपने लड़े से एनसीज में किया, मान लिया आपने बोला जी डिफ्लेक्शन इतनी आई, वट एवर यू गेट इन एनसीज और प्रैक्टिकली जो आता है उसमें बहुत वेरिएशन आती हैं। हाँ सर एग्जैक्टली। तो इवन जो डिफ्लेक्शन आप शो कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि 0 पॉइंट सम, बट एक्चुअल जब मटेरियल को वहां पर यूज करके देखोगे वहां कुछ अलग आएगा। तो जब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वाला जो पार्ट है, अनटिल अनलेस आप उसको ऑपरेट करके देखोगे तब तक तो उसका कोई मतलब, वो केवल थ्योरेटिकल आपका कंसेप्ट है। सर उस चीज के So- लिए उस ये जो आपका क्वेश्चन था वो एकदम वैलिड है, यही क्वेश्चन मेरे माइंड में भी पॉप अप हुआ था कि लाइक जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि क्या पता उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा हूँ। तो इसी चीज को मैंने नोट डाउन करने के लिए मैंने जो सिमिलर काइंड की मशीन्स थी, तो जैसे मेरा टूल पोस्ट का जो वेट था वो अराउंड 44 kg के अराउंड था, बट मैंने जो टेस्टिंग की थी वो 100 kg के अराउंड की थी। और प्लस जो भी मशीन सिमिलर कंसेप्ट पे जो डिजाइन है वो मशीन मैंने एक्चुअल में जाके देखी, एक्चुअल में ऑपरेट करके देखी, उनके जो भी पैरामीटर्स थे उनको नोट आउट किया। इवन उनकी डिजाइन टीम जो है, लाइक हीरा ऑटोमेशन लिमिटेड, एक पुणे की कंपनी जो स्पेशली पेंटिंग्स की मशीन जो डिजाइन करती है, चाइना की कुछ कंपनीज और यूएस की कुछ कंपनीज जो टाइटन सीएनसी मशीन बनाती है, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने ये वेरीफाई करवाया कि लाइक इज इट पॉसिबल। उन्होंने बोला कि डेफिनेटली होगा कि आपने जब मॉडल तैयार किया है, राइट, आपने जो डिजाइन तैयार किया है उस डिजाइन को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपको केवल एक पैनल की रिक्वायरमेंट होती, राइट, या सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट, वो पैनल भी छोड़ो जो आपने एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, आप कोई भी वर्क पीस ले सकते थे ऑफ दैट एरिया, उस एरिया में रख के आप उसको नोट डाउन करते, यू वुड हैव ऑब्जर्व हाउ द डिविएशन इज कमिंग, और वो फिर आप डिवीजन नोट करते, फिर आपका जो प्रपोजल आगे जाता तो उसमें कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा सकता। अभी थ्योरेटिकल अगर आप देते हो, मान लिया उसको प्रपोज करते हो, उनको पता है कि ये तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली डिजाइन करना है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अनटिल अनलेस आपने कुछ एक रिजल्ट्स, कंपेरेबल रिजल्ट्स दिए होते कि हाँ देखो ये डेटा है जो प्रैक्टिकल बनाया है मैंने, और ये डेटा आ रहा है, और ये थ्योरेटिकल डिजाइन है, इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए ये प्रपोजल्स हैं, ये किए जा सकते हैं, फ्यूचर में ये किया जा सकता है। अभी आज की डेट में आपने अगर वो सिंपली प्रपोजल दे दिया तो वो केवल एक थ्योरेटिकल कंसिडरेशन के बेसिस पर होगा, उस पर बहुत ज्यादा कुछ लीड लेना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। डोंट यू थिंक सो? सर यही चीज मैंने भी की है, मतलब लाइक आपने जो बोला वही मैंने किया था। मैंने भी हीरा ऑटोमेशन के पास 5 एक्सिस स्प्रे पेंटिंग मशीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और उनका जो एक क्लाइंट था वो दिल्ली के अंदर था। तो मैंने उनको कॉल किया कि लाइक कि आपकी मशीन जो है किस वे में वर्क कर रही है, कितना टाइम ले रही है, कितना
वेलोसिटी किस वे में, कितनी थिकनेस कंट्रोल कर पा रही है, जो भी डेटा उनसे मिला, उसके साथ साथ फिर मैंने कंपनी के जो डिज़ाइन एक्सपर्ट थे जो उस मशीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम पॉइंट की मशीन है, थोड़ा उनका 4x4 मतलब लाइक कि 4 फीट x 4 फीट, बट मेरी मशीन का वर्किंग जोन डिफरेंट है, यही एक चेंज है। और बाकी सिमिलर वे के अंदर वर्क कर रही है, बस मैंने थोड़े परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा वर्क किया है। और सेम जो वेलोसिटीज़ है, जो भी उनके पास वेलोसिटी आ रही, लाइक कि गन की वेलोसिटी किस है, किस वे में आने वाली है, पेंट किस वे में स्प्रे होने वाला, कितना स्पीड से पेंट आने वाला, क्या वॉल्यूम आ रहा है, ये सारी चीज़ रियलिस्टिक डेटा लिया मैंने, क्योंकि नहीं नहीं, मैंने वो उनको ठीक है। सी हाँ रेप्लिकेट करना डिफरेंट है। एक ये है कि जो ऑलरेडी मशीन जो एग्जिस्टिंग है, जो कि वेरीफाइड है एंड बहुत सारे कस्टमर उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हाँ ये वो डाटा है, राइट। यहाँ पर वो है जो कि बनाई नहीं है किसी ने, राइट, हाँ यही बोल रहे हो आप। ये यस सर। पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन या इस पर्टिकुलर एरिया के लिए अभी तक मार्केट में एज ऑफ नाउ जो आप सोचते हो वो इंडिया में नहीं है। वो अगर लेटर से बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ वो यही बोलते हो। 1.5 करोड़ के अराउंड आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी, नहीं तो आपको नहीं लगता कि वो ऑलरेडी इंडिया में दे मस्ट है। अगर 7.5 करोड़ अगर कहाँ कहाँ का कोर्स वो बता रही हो आप, कहाँ से बता रही हो मेकअप ये? सर चाइना से आती है वो मशीन है। चाइना, तो चाइना से 7.5 करोड़ की है। तो इसका हम्म, मतलब है चाइना अगर 7.5 करोड़ दे रहा है तो इंडिया में डेफिनेटली उससे ज्यादा होगा। हाँ नहीं चलो सर, वो तब भी मान लिया, ड्यूटी कंपेरेबल भी बाद मान में। लिया, तो हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वहां पर इस साइज की मशीन के लिए कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी। दैट इज वाई उन्होंने आज तक सोल्यूशन प्रपोज नहीं किया। स्मॉलर वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो हम्म, आपको लगता है कि सो इतना इजी है उसको रेप्लिकेट करना उस फॉर्मेट में? सर क्योंकि एक्चुअल आपका सी में द कॉस्ट पार्ट, सी 7.5 करोड़ और आपका जो फाइनल कॉस्ट पार्ट है वो कितना नहीं है? सर, 1.5 करोड़। हाँ 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़, और आप जो है इसको क्या कर रहे हो, मतलब कटिंग चाइना को एज। बीट कर रहे हो, आप मेक इन इंडिया कर रहे हो पूरा। ठीक है, सर मतलब एक्चुअल में 1.5 सर ये करोड़ मशीन आपने जो है इतना नहीं 11 बन लाख रही। प्रपोज कर दिया पूरा पूरा। सर मैंने मार्केट स्टडी किया तो उसमें मुझे पता चल गया कि लाइक एक सीएनसी मशीन बनने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है और कंपनी में कितने में सेल करती है, तो नहीं नहीं, वो वो ठीक है, मैंने चलो आपने जो है वो वहां से हमने इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की, आपने बोला जी चलो हाँ मैंने 100% इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की लेटर से, तो हाँ 75 लाख तो फिर भी मान लो ना। चाइना से हाँ इंपोर्ट करने के लिए अगर 100% इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की, वो भी हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, 100% होगी नहीं, नहीं, ठीक है, 23% है। हाइपोथेटिकली, तो हाँ तब भी 75 लाख, राइट। हाँ तो दैट वे, और वो है चाइना की बात हो रही है, मतलब उन्होंने 75 लाख वहां से भेजी। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट हाँ में देख लो इसको, तो यहाँ तो कॉस्ट ऊपर ही जाएगी ना, वहां तो एक्चुअल में लेबर सर, कॉस्ट भी कम हुई होगी एंड ऑल दैट। एक्चुअल में सर इसकी क्या ना कि जो स्पेशल पर्पस मशीन हम किसी भी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो वो एक डेडिकेटेड, हम उसके लिए R&D करके खुद डिज़ाइन करते हैं। तो अभी स्टेटस अगर क्या हम है, अभी स्टेटस क्या है जो आपने डिजाइन प्रपोज किया है, अभी क्या है? उनक उनकी तरफ से अप्रूवल है, और वो पहले ये चाह रहे हैं कि स्पेटर रिमूवल मशीन जो है वो पहले हम बना के दें उनको, उसके बाद वो, क्योंकि जो मशीन स्पेटर पे बनने वाली है वही सेम एक्सिस के ऊपर हमारी पेंटिंग मशीन चलने वाली, तो वो उनके साथ, वो स्पेटर रिमूव के साथ तो ओके हैं, तो जिससे मैं स्वेटर तो चार। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी। हाँ वो उसके लिए जो जो अभी सॉल्यूशन वहाँ पे यूज़ हो रहा है, लाइक वो वाइब्रेशन वाली जो मशीन्स होती है, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से लूज आउट हो जाते हैं स्पैटर, और वो मतलब कि उसको इजीली एयर क्लीन कर दिया जाता है, बट वो इतना इफेक्टिव वे में हो नहीं पाता है, क्योंकि जैसे कि अगर हम लिस्ट आउट करें बॉयलर इंडस्ट्रीज की जो टॉप 10 कंपनीज है इंडिया की, उसमें थर्ड नंबर पे जो है CBL आती है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि लाइक दूसरी कंपनीज वाटर वॉल पैनल को किस वे में डिज़ाइन कर रही है, तो जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है जिनको वाटर वॉल पैनल्स की नीड होती है वो कम होने की वजह से क्या होता है कि लाइक मशीन की इसकी डिमांड नहीं है। अगर हम US और जैसे कि जर्मनी वगैरह उनके अंदर देखें तो वाटर वॉल पैनल वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है सारी चीज़ें, बट एक्चुअल में इंडिया वाले क्या होता है कि ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के चक्कर में क्या करते हैं कि लाइक, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट इतना करना है तो वो ये सोचते हैं कि मैनुअल प्रोसेस के थ्रू हम जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो लॉज होते हैं गवर्नमेंट के वो ये होते हैं कि लाइक आप जितनी ज़्यादा हो सके आप एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करके दो, तो उस वजह से, क्योंकि जब हमारी मीटिंग्स हुई थी तो उन्होंने एक मैनेजमेंट जो सर थे उन्होंने मेरे से पूछा था कि इससे तो आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो लूज आउट कर रहे हो, लाइक एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा उससे, तो क्योंकि जहाँ पे 8 वर्कर्स हमारे एक प्रोडक्ट पे यूज़ कर रहे हो
तो वहाँ पे अब तुम 2 ही करने वाले हो, तो व्हाट अबाउट 6? तो उसका मेरे पास आंसर नहीं था कि लाइक मैं क्या बोल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रहता है, और दूसरी चीज़ की इसकी डिमांड कम होती है, क्योंकि स्पेशल पर्पस मशीन हर कोई कंपनी जो है वो इतना इजीली वह यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर आप चाइनीज़ कंपनीज के अंदर, जैसे कि लेट सपोज कि आप किसी चाइना कंपनी से अगर आप डील करते हो, बोलते हो कि लाइक हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे इनकाउंटर करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चार्ज करने वाला है, क्योंकि सीबीएल के अंदर एक डबल गैंग ड्रिलिंग मशीन जो है वो चाइना से आई हुई है, वो वुहांग सिटी से आई हुई है। तो उनका जो ऑपरेटर आया था उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि लाइक एक्चुअल में जो मशीन है उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मशीन है। बट मैंने बोला कि व्हाट अबाउट अगर हम कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट के साथ, तो उसने बोला कि उसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस हो जाती है। लाइक अगर 10 लाख की कोई मशीन है तो वो अराउंड उसकी 20 लाख रुपए के अराउंड उसका प्राइस लगना। तो मैंने बोला कि ये चीज़ क्यों? उन्होंने बोला कि उसके लिए पूरी डेडिकेटेड टीम होती है, वो आपके प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही होती है। तो हर इंडस्ट्री जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती है कि वो इतना पैसा उसके ऊपर दे, इस वजह से जो है इसका मार्केट कम होता है, इसलिए लोग ये मशीन बाहर से नहीं मंगवाते हैं, इसीलिए इसका वर्किंग जोन कम होता है। विशाल I जी, think because competition less है इसलिए भी I think the cost is more. Shailesh, the Yes, sir. Chinese cost that Yes, can sir. be. Vishal sir, you have some queries? Yes, yes. Shailesh, my first question is to you. How many water wall production like demand is there, like for Chima Polar? How many water wall panel they produce? It's depend on how many clients are using, या Roughly, फिर roughly in your duration of 6 months, what do you see? Like how many this demand Chima Polar is getting बिकॉज from different industries? टिल डेट 22 मार्च, जब तक कि लॉकडाउन नहीं हुआ था, उससे पहले जो डिमांड थी वो अराउंड हम 18 वाटर वॉल पैनल्स हम प्रोड्यूस कर चुके थे, और बाकी जो है लाइनअप थे उसके 18 अंदर। in 18 in how many months? 18 वाटर वॉल पैनल्स हम प्रॉपरली मतलब उसको डिलीवर कर चुके थे, और Oh, in 6 months, 6 months, 18 or नहीं, अप टिल 22 मार्च, फ्रॉम द जनवरी 2020 टू 22 मार्च। okay, means roughly we can say कि 10 panel per month. हाँ, अराउंड Roughly 10 to 15 पैनल्स जो है हमारे को एक मंथ में प्रोड्यूस करने होते हैं। 10 to 15 तो panels. हाँ, इतना ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक डाटा में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लगा है शैलेश, आपने मेंशन किया कि अच्छा हाउ मेनी टाइम दैट मैनुअल प्रोसेस इज टेकिंग फॉर वन साइड पेंटिंग? अराउंड 4.5 आवर्स। अराउंड 4.5 hours and you are ये saving इससे 48 minutes. You are saving 48 minutes by using, you have mentioned 48 minutes we are saving 40, on one side. हाँ, फॉर ओनली 48 मिनट्स वी आर सेविंग ऑन वन साइड, और अगर हम दोनों साइड के देखें तो अराउंड 96 मिनट्स होते हैं, तो अराउंड हम 1.5 घंटा उसमें सेव करने वाले हैं। means automatic process is taking almost 3.5 hours, because manual process is taking 4.5 hours. You are saving 48 minutes, means automatic processes will take 3.5 hours. नहीं सर, वो एक साइड के लिए, एक साइड एक के side, लिए one side एक, automatic panel will take 3.5 hours ना, हाँ ये बोल सकते हैं हम, and two side it will take 7 hours. हाँ 7.5 आवर्स। What do you think? This is very narrow gap ना between a manual operation and automatic operation. 9 hours you are हाँ, taking with manual operation, 7 हाँ, hours you are taking with automatic operation. 7 ऑटोमेटिक hours. विथ वन पॉइंट इज दैट कि ये जो 7 आवर्स आ रहे हैं, अगर हम वाटर वॉल पैनल को सिर्फ स्प्रे जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं कंपनी, लाइक स्प्रे पेंटिंग और एयर क्लीनिंग वाले प्रोसेस को, अगर या उस सॉल्यूशन को जो मैंने बिल्ड करके दिया है अगर वो यूज करें, तो 7.5 आवर्स में वो प्रोसेस को डन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो टाइम सेविंग हो रहा है वो 1.5 आवर्स का हो रहा है। But बट you अगर have mentioned only 3300 seconds, something like that. वो 3300 seconds. वो चीज थी कि लाइक अगर आप स्पेटर रिमूवल मशीन भी उसके साथ अटैच करके बनाते हैं, लाइक जो स्प्रे पेंटिंग मशीन जो है उसके साथ अगर स्पेटल रिमूवल मशीन को भी आप इसी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो अगर हम देखें तो 96 मिनट्स में स्प्रे पेंटिंग और एयर क्लीनिंग से सेव कर पा रहा था, और Yes. 330 मिनट्स जो है मैं स्पेटर रिमूव से मतलब सेव कर पा रहा था। अगर हम इसको एडअप करें तो अराउंड 7 आवर्स जो है हम उससे सेव कर पा रहे हैं।
7 आवर्स सेव कर पा रहे हैं, मतलब 9 आवर्स का जो काम था, अगर ये दोनों सॉल्यूशन वो अडॉप्ट करे कंपनी, तो हम 2 घंटे में एक वाटर वॉल पैनल पेंट करके दे सकते हैं। No, it's fine. Like if you will conclude like for 15 panel water panel requirement in a month, 2 hour you are saving for one panel. Okay. So for 15, So how around many 3 hours? How many hours you will save? अराउंड 3 डेज जो होते हैं उसके अंदर हम कर पाएंगे, क्योंकि कंपनीज के जो आवर है वो 8 आवर्स के अंदर कंपनी ऑपरेट होती है, तो Yes, yes, अराउंड 3 डेज के अंदर हम उसको कर पाएंगे। yes. So roughly we will save only 30 hours, na? 30 hours. 2 hours per panel and 15 panel if we will assume like for month. So 30 hour we will able to save only. बोल सकते हैं, बट सर जैसे कि लाइक कई बार जैसे क्या होता है कि जो पूरा जो साइकिल है वाटर वॉल पैनल का, जो साइकिल है वो हर कहीं ना कहीं से लिंक है कि लाइक वेल्डिंग प्रोसेस से आएगा, उसके बाद तो वो जो टाइम है ड्यूरेशन, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कंटिन्यू वाटर वॉल पैनल बन के हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि एक हर एक प्रोसेस से उनको आना होता है, तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो जो अभी जो प्रोसेस है उसके अंदर अराउंड एक वाटर वॉल पैनल बनकर आने में अराउंड 13 आवर्स या 14 आवर्स का जो है उनका एक गैप रहता है। तो उस गैप के अंदर जैसे जो ये एक प्रोडक्ट है, लाइक वाटर वॉल पैनल सिर्फ एक छोटा मतलब एक प्रोडक्ट है, उसके साथ जो कुछ छोटी डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर पेंट होता है, लाइक आप कंप्रेसर्स जो हो गए या उसके ब्लोअर्स जो हो गए, हम उस टाइम ड्यूरेशन को लाइक वो 13 आवर्स का जो गैप है उस ड्यूरेशन में हम दूसरी चीजें पेंट कर सकते हैं। तो ये एक तो एडवांटेज तभी था। तभी तभी जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन सर ने मेंशन किया था कि इफ वी आर यूजिंग ए मास प्रोडक्शन, हाँ। एक पैनल है मास प्रोडक्शन में हम पैनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन इट विल बी बेनिफिट। हाँ Otherwise, the machine will be in standby only. हाँ You according to you, theoretically you are saying कि we are saving time, but actually it will not save any time. बट The machine नहीं will सर, stand by. हमने नहीं सर, टाइम तो हमने सेव किया ना, लाइक कि अगर आप मैनुअल प्रोसेस से एक साल के अंदर हम 320 मैक्सिमम वाटर वॉल पैनल बना सकते हैं फुल वर्क फोर्स के साथ। अगर हमारे पास 320 वर्क पेन जो वाटर वॉल पैनल अगर वो हमारे पास प्रोड्यूस होकर रखे हुए हैं, उस पर हमारी मैन पावर जो है वर्क करे, तो उसका जो टोटल टाइम आएगा वो माइनस हम ऑटोमेटिक मशीन को यूज करें तो अराउंड वाटर वॉल पैनल को जो है 7 आवर्स हम वो सेव कर सकते हैं। एक वो मैंने एक वे दिया कि लाइक हम इस वे में सेव कर सकते हैं। आपने CNC ऑपरेटर का कॉस्ट मेंशन किया 12,000 रुपीज हाँ। पर मंथ। क्या इट इज पॉसिबल टू अब- गेट CNC ऑपरेटर? तो स्किल्ड पर्सन आता है, स्किल्ड पर्सन है। नहीं सर, व्हाट डू यू थिंक? वो जो CNC ऑपरेटर तो स्किल्ड नहीं पर्सन सर है ना? अब मिल जाता है। तो 12,000 में मिल जाता है। हाँ अच्छा 12,000 तो मिनिमम वेजेस भी नहीं है गवर्नमेंट की फॉर सेमी स्किल्ड पर्सन। बट सर मैंने ये चीज देखी है कि मतलब लाइक 15,000, बट मैंने एक मिनिमम उनको एक वे दिया है, लाइक अगर आप ज्यादा कॉस्ट दोगे तो ऑब्वियस है कि लाइक थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे कोई इशू नहीं आना, क्योंकि जब 6 रुपीज वाटर वॉल पैनल के ऊपर जा रहा है एक वाटर वॉल पैनल के ऊपर, तो लेट सपोज कि अगर 20,000 भी होगा तभी कोई इशू नहीं आने वाला उस पर इतना। ठीक है मेरे हिसाब से अगर ये कंटिन्यूस रहेगा, देखो हम 6 रुपीज तब निकाल पा रहे हैं, वी आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग पैनल। हाँ हाँ कंटिन्यूसली नहीं है तो फिर वो 6 रुपीज नहीं हो सकता। तो अच्छा, सर ठीक है, अगर हमें उसके लिए 15 ही पैनल, हाँ अगर हाँ, हमें 15 ही पैनल बनाने हैं और हमने हाँ। उसके लिए CNC ऑपरेटर रख लिया, तब वो 6 रुपीज नहीं आएगा। अच्छा शैलेश, सर वो तुमने एक वाटर, तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वाटर वॉल पैनल को। अच्छा शैलेश, sir. आपने ये काम जो किया ये आपने वहां पे मैनेजमेंट में दिखाया होगा, राइट? ये डिस्कस विद हाँ देम। सर, उनसे So- मल्टीपल मीटिंग्स हुई है लाइक। हाँ Okay, so did they offered you sir. some kind of job there? यस सर, उन्होंने मुझे लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट में जॉब दी थी, लाइक क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट था वो उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के साथ साथ डिज़ाइन था और मोरओवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, तो उन्होंने मुझे 4 डिपार्टमेंट्स ऑफर किए, लाइक प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन और प्रपोजल डिपार्टमेंट। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप कर लो, दैट इज व्हाट दे सेड। हाँ यस सर। तो तुम्हें लगता है शैलेश कि अगर तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से करो तो जॉब्स लग जाएंगी इंडस्ट्रीज के अंदर? बट अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाते हो कि आप इंडस्ट्री को मतलब कि अगर हम ये सोच के जाए कि लाइक
हम जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, अगर हम मार्क्स को सोच के जाए कि लाइक हम अच्छे ग्रेड्स ले ले तो वो फिजिबल नहीं। बट अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो कि हमें वो चीज़ सीखनी है और जो भी हमारा 6 मंथ है हम उसको कंपनी के फेवरेबल या फिर उनका जो स्टेटस है उसको एड ऑन, मतलब वैल्यू एड ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। लाइक कि आप उसमें कंपनी में 6 मंथ जो काम करो उससे कंपनी की वैल्यूज में कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर हम उनका पेन एरिया या फिर कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हम फाइंड आउट कर ले जिससे कि कंपनी इग्नोर कर रही है, जानबूझ के इग्नोर कर रही है, और वो एक रियल पेन प्रॉब्लम है उनकी, या फिर मैनेजमेंट को कई बार पता नहीं होता कि एक्चुअल में एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, किस वे में प्रोसेस हो रहा है। अगर हम वो छोटी छोटी डिटेल्स पे भी अगर हम वर्क करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर हम ये सारी चीज़ें हम एट द लास्ट डे ऑफ योर ट्रेनिंग अगर हम उसको चीज़ को सबमिट करें तो जो हमारा ट्रेनिंग का जो हेड है उनको रियलाइज हो जाएगा कि इसने कुछ वर्थ वर्क किया है, लाइक इसने उस वे नॉर्मली में वर्क किया ट्रेनिंग जिस में वे में उनको सलेश, चाहिए, नॉर्मली क्योंकि ट्रेनिंग कोई में भी जब कंपनी हमें फ्री में पे नहीं करती। आपका ये पेड मॉड्यूल था, पेड उन्होंने आपको पे किया था? सर पेड था बट उन्होंने जनवरी 1 से मतलब कि बुलाया था, बट मैं उस टाइम जा नहीं पाया था क्योंकि आई वाज बाइस बिटवीन टू कंपनीज। तो फिर मैंने लेट ज्वाइन करने की वजह से उन्होंने स्टाइफंड नहीं दिया था। तो बट फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छा मिल गया था और मैनेजमेंट था वो कॉपरेट कर रहा था, तो मुझे लगा कि फ्री में वर्क करो कोई इशू नहीं। बट हमें एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिली है तो मैंने फिर उसके साथ फ्री में ही अच्छा, ट्रेनिंग बहुत स्टार्ट से कर दी। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं जो ट्रेनिंग में जाते हैं, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं This कि problem they have. अ, कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती इंडस्ट्री, और हमें कुछ मशीन को टच नहीं करने देते हमें। तुमने तो बहुत ज्यादा डाटा शो किया हुआ है कि यार मेरे को बहुत ज्यादा डाटा मैंने यूज किया, सब कुछ किया। तो क्या ये कंपनीज में लोग कोऑपरेट करते हैं ऐसे? सर कोऑपरेट कोई नहीं करता, लाइक मतलब आपको घंटों तक बाहर उनके ऑफिस के वेट भी करना पड़ेगा आपको। लाइक आप फोन रिंग करोगे किसी और कंपनीज का, उनको मेल डालोगे, वो आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे इतना आसानी से। बट अगर आप बार बार कीप करते रहोगे, लाइक कि जो हीरा ऑटोमेशन लिमिटेड है, आफ्टर शेड्यूलिंग 20 मीटिंग्स, जो 20 वाली मीटिंग्स थी ना वो जाके मेरी फिजिबल हुई। मतलब मैंने 20 बार उनसे मीटिंग का ट्राई किया तब जाके उन्होंने मुझे फाइनली एक्सपर्ट के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की। बट अगर आप कीप ऑन करते रहते हैं, लाइक आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि वो भी एक सीरियसनेस देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है कि एक्सपर्ट्स के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वो आपको फ्री में कोई काम नहीं देने वाले हैं। तो अगर थोड़ा भी वो टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए वो वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। और हाँ, हमें तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस, क्योंकि इजीली गिव अप करने से कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर आप सीरियसली कोई प्रोजेक्ट को या सीरियसली कोई प्रॉब्लम हैंडल करना चाह रहे हो तो हमें ट्राई करना पड़ता है तो इसमें सलेश और हमें वो वैल्यू शो करनी पड़ती है कि लाइक वी आर कैपेबल। अभी जो उन्होंने आपको ऑफर किया जॉब का, तो आप ले रहे हैं या आप नहीं ले हेलो रहे हैं? सलेश, कैन यू हियर मी? सर अभी मैं थोड़ा मतलब कि नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद मैं खुद का कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि लाइक अगर हम स्पेशल पर्पस मशीन की बात करें तो let I share some facts with you. लाइक जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि लाइक ये स्टूडेंट सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये मेजर क्वेश्चन होते हैं कि लाइक कि उनको प्रोजेक्ट कैसे मिलने वाला है, या फिर अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो उनके पास राइट चॉइस नहीं रहती कि लाइक कि कौन सा प्रोजेक्ट लें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट तो मिल गया लेकिन वो जिस डोमेन में वर्क करना चाहते हैं वो उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। और अगर उनको प्रोजेक्ट पर मिल भी गया जो डोमेन में वो वर्क करना चाहते हैं तो उनके पास ये रहता है कि लाइक कि वो वर्क कैसे करे, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करे। अगर उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट भी कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उन्होंने जो वर्क किया उसको सबमिट किस वे में किया जाए मैनेजर्स को। अब मैनेजर ने भी ओके कर दिया तो अब उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आप एग्जीक्यूट किस तरीके से करें। तो एक ये ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है कि लाइक क्या क्या क्वेश्चन जो है मेजर की पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो ये हो सकते हैं। और जनरली अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को अगर हम इसी वे में देखें कि लाइक हम यहाँ से मार्क्स की वजह से लेके चले तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ हटके करना चाहते हैं तो लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारी लास्ट सेम में होती है। तो लाइक बीटेक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो हम जॉब के साथ जा सकते हैं जो डोमेन में हमने वर्क किया प्रोजेक्ट में, या फिर हम स्टार्टअप के साथ जा सकते हैं, या फिर हम हायर एजुकेशन के साथ जा सकते हैं।
तो कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मतलब हम प्रोजेक्ट को इतना सीरियस नहीं लेते, बट अगर आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आप चाहे आईआईटीज में जाओ, चाहे आप यूएस में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे अब्रॉड में, आप इवन मैनेजमेंट में जाओ, आपका बीटेक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो अगर आप जितना सीरियस वे में और जितना फ्रूटफुल वे में आप बीटेक प्रोजेक्ट करोगे, उतने चांसेस आपके इंटरव्यू में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हमने किसी, लेट सपोज कि किसी ने सीएनसी के अंदर प्रोजेक्ट किया, वो हायर एजुकेशन में अगर पीएचडी में सीएनसी मशीन के ऊपर पीएचडी करना चाहता है, तो जो चांसेस जो होते हैं कन्वर्ट करने के, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और इवन अगर आपने प्रोजेक्ट ढंग से किया तो आपको जॉब मिलने के चांसेस, क्योंकि आपने कुछ ऐसा वर्क किया है जो कि इंडस्ट्री को हेल्पफुल होता है। और अगर आपके पास सच में अच्छी टीम है, अच्छे फ्रेंड्स हैं जो सिमिलर माइंडसेट के साथ है, तो आप स्टार्टअप के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो स्टार्टअप का टाइम चल रहा है कि अगर आप में थोड़ा पोटेंशियल है, आप थोड़ा अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ करना चाहते हो, तो आप उस डोमेन में छोटे से लीड लेके, लाइक आप छोटा सा 6 मंथ का जो लीड है उसको लेके भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इवन इट इज एन आल्सो पॉसिबल। ओके तो यस सर। ओके शैलेश, सो आई बिलीव कि ये जो अच्छा प्रोजेक्ट करना है, इससे एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज भी आते हैं। जॉब तो इंडस्ट्री में लग ही जाती है, यस जो सर। बच्चे बोलते हैं ना साहब जॉब कैसे लगेगी, वो तो लग ही जाती है, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज भी आते हैं, एंड सर्टनली यू कैन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। एनीथिंग एल्स सर यू हैव? आई थिंक ही हैज डन गुड प्रोजेक्ट जिसके बेस पे इसको जॉब भी मिली है और अब इसको एंटरप्रेन्योरशिप Yes. का आइडिया भी है, जिस डायरेक्शन में शैलेश जा सकता है। आई थिंक दैट इज गुड। एनी अदर क्वेश्चंस विशाल सर, Saklani sir, you want to ask? I think it's okay. So I Yes. think Shailesh, one thing yes. Yes, sir. Saglani sir, you can discuss. You can. no, it's okay. It's okay. Shailesh, one thing I want to say, like many times you mentioned the cost will decrease, the operational cost is coming out less. Okay, so आपने इसका ट्रायल नहीं किया अभी तक, तो आपको ये वर्ड नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि कैन बी रिड्यूस्ड इफ वी विल फाइनली यूज दिस सिस्टम। जितने भी पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन किए, ईच एंड एवरी टाइम यू मेंशन लाइक द कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड ऑपरेशनल कॉस्ट इज लेस, पेंट कॉस्ट इज लेस। आपको ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए जब तक आपने उसको ट्रायल नहीं किया है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ इट मे रिड्यूस, गेटिंग पॉइंट। और हाँ, और दूसरा कि देखो ये प्रोजेक्ट आपको दिया गया था उनकी तरफ से ना? नहीं सर, ये प्रोजेक्ट मैंने लिया था। प्रोजेक्ट लाइक उन्होंने आपने फाइंड आउट की और फिर आपने उनको हाँ, प्रपोज किया, ऐसा एक्चुअली नहीं मैंने नहीं, उन्होंने भी सिमिलर वे में यही चीज जो मेजर स्टूडेंट्स को होती है, लाइक कि डे 1 जाने के बाद में आपको एक शॉप असाइन होती है, आपको वहाँ पे रिपीटेटिव वर्क करना होता है। तो आई वॉज कि मैंने 3 घंटे मतलब लाइक जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे मैंने मतलब मीटिंग के लिए 3 घंटे वेट करके फिर मैंने उनसे बात की कि लाइक मैं रिपीटेटिव वर्क नहीं कर सकता है, वो कि मेरे को कुछ ऐसा वर्क करना है जो कि कंपनी में वैल्यू ऐड करे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि लाइक आप क्या चीज़ कर सकते हो। तो फिर क्योंकि मैं पहले ही प्रिपेयर होकर गया था कि लाइक कि मैंने लिस्ट आउट कर लिया क्या क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने उनको स्पेसिफिक बताया कि आप ये प्रॉब्लम है वो मुझे असाइन कर दो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये कर पाओगे। तो फिर मैंने 2 दिन का टाइम लेके फिर मैंने उनको बताया कि लाइक मैं इस वे में प्रोसेस करूँगा, मेरे के साथ ये इंडस्ट्री के मेंटर्स होंगे। फिर मेरे एचओडी उन सब से मैंने उनको मीटिंग करवाई, तो फिर उन्होंने फाइनल अप्रूवल दिया कि यस यू कैन गो। तो वो तो ये इंडिविजुअल आप ही का वर्क रहा है सारा, मतलब डिफरेंट हाँ लोगों से तो आपने इंटरेक्ट किया ही, बट काम आपका अकेले का रहा है इसमें सारा ना? हाँ, कंपनी ने हेल्प किया कि लाइक अगर कहीं ट्रेवल करना है तो वो सारी चीज़ें कंपनी अफोर्ड करती है। तो ओके जितना पॉसिबल डेटा हो सके या जितना पॉसिबल में हेल्प हो सके, तो वो इंडस्ट्री तभी करती है जब आप कोई ऐसा काम करो जो दूसरे ट्रेनीज नहीं कर पाते। आपको थोड़ा एड ऑन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है उसको। बट व्हाट डू यू थिंक, इट इज बेटर टू फर्स्ट गेन सम टेक्निक्स to start any entrepreneurial activity in some particular domain? It is better to get some training, some experience in that field. What do you think? एक्चुअल में सर हम ये नहीं कह सकते कि एक्सपीरियंस बंदा ही स्टार्टअप को लीड कर सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऐसे एग्जांपल्स भी सेट किए हैं। इवन जो 7th और 8th क्लास पास आउट स्टूडेंट्स हैं या वो फेल्ड है, वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो हम ये नहीं चीज़ कर सकते कि आप एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि कहीं कहीं बार एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है। बट जो की पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप का वो सिर्फ ये चीज़ है कि आपको वो चीज़ करने में मज़ा आना चाहिए।
बिल्कुल इफ यू मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इफ यू आर रेडी विथ डूइंग लर्निंग और लर्निंग एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो, अगर आप 50 साल तक भी सिर्फ सीखना चाहते हो तब तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए अच्छा है, वरना अगर आप पैसा कमाने के मोटिव से जाते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर यू। क्योंकि मोटिवेशन पैसा नहीं देता है, मोटिवेशन देता है कि आप सोसाइटी में वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप को जो एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल एक्सपीरियंस तो आप को फाउंडर लेके आप एक्सपीरियंस टीम हायर कर सकते हो, बट उसके लिए आपका मोटिव ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लीडरशिप सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। गुड गुड। Kalani sir, ठीक है, you want to ask आपका विजन anything क्लियर है। before we end it up? वैसे इट्स ओके आई थिंक। शैलेश, अच्छा था तुम्हारा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा था। और ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि अगर अच्छा काम करोगे इंडस्ट्रीज में तो आपको जॉब भी लगती है और आपको एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया भी आता है। और वही आई थिंक आवर कंट्री रिक्वायर्स के जो बाहर से चीजें आ रही हैं हम उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करें एंड वी बेसिकली सेल दैट पर्टिकुलर थिंग टू देयर। We wish you all the best, Shailesh, for your next journey, whether it is entrepreneurship or it is job. We wish you all the best. अच्छा काम किया तुमने, and we will share it with other students also. Maybe when students want to interact with you related to your project, I hope you will help them out. Right, Shailesh? Yes, sure. Chalo, ओके let's end सलेश, it up. ओके, Thank you all of Okay. you. Thank ऑल you. द बेस्ट।